Hello and welcome to Beautiful Mind IS. I am Arun Kumar and this is my ethics class. Most students feel difficulty in answering question that is related to quotes given by thinkers. And generally question is that what does it mean to you, how you interpret it. So many students have asked this thing. I am going to discuss one question that has been asked in 2024. And with the help of these questions, I will help you know that how you can frame your answer and what is the rationale behind giving that answer. And here is the question. Question says that given below are three quotations of great thinkers. What do each of these quotations convey to you in the present context? What do each of these quotations convey to you? Listen carefully. In the present context means what is it mean to you, what message it gives to you, and then in the present context also you keep in mind. The first quotation is learn everything that is good from other but bring it in and in your own way absorb it. Do not become others. Swami Vivekanand, 10 marks. I am repeating, दूसरे से जो भी अच्छा है उसे सीखो लेकिन उसे अपने अंदर लाओ और उसे अपने तरीके से उसे आत्मसात करो, दूसरे जैसा मत बनो. ये कोटेशन. आई एम रिपीटिंग, लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स, ब्रिंग इट इन एंड इन योर ओन वे एब्जॉर्ब इट. डू नॉट बिकम अदर्स. दूसरे के जैसा मत बनो. स्वामी विवेकानंद. नाउ क्वेश्चन दिस थिंग, व्हाट डज इट मीन टू मी, यू नो. So this is a question. So here suppose this is a person, getting, this person is a model for me because I have got something that this person has a very good trait. For example, this person has got patience, you know. Patience is a virtue, is a trait of personality. धैर्य जिसको कहते हैं, that is highly admirable. And many people have problem, you know, with this thing. So this is good in this person. Suppose here I am, here me. Okay. So see this thing, I should. What are the three things? One thing is that learn. I should learn this thing, means learning take place on the basis of experience, you know this thing. So I on the experience it. Okay. Then bring in it means bring it in. मतलब you should learn, okay, but आत्मसात भी करो, मतलब कि अपने अंदर लाओ. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई सी महेंद्र सिंह धोनी, सपोज ही यूज्ड टू डिस्प्ले वेरी ग्रेट पेशेंस. फेलियर, नो, पीपल आर क्रिटिसाइजिंग बट वेट, नो कमेंट. ओके, इट हैपेंस इन, यूजुअली कमेंट्स इज दैट इट हैपेंस इन, यू नो, गेम प्ले. ऐसा होता है. सो यू कैन नॉट ऑलवेज से दैट आई, यू नो, दिस I played very well, then I will win. Sometimes you play well, your counterpart play better. That is the situation. So this thing, patience is a very great virtue. Okay. Now just listening that patience is a great virtue is not learning. You know this thing. You should check whether you have under this virtue is inside you or not. How I will make sure. I should make sure this thing also. That this is first one, this is second step. And the third one, the most important step is here, that absorb it in your own way. See, absorb it in your own way. Now don't be others, and here is that don't be other. Don't
be others. Now absorb it in your own way. What does it mean? In playground, patience may be a virtue, and that will be. Suppose I am struggling with, suppose I am a doctor, I am trying to deal with some emergency situations. So my patience, suppose my patience will be in that context. Suppose I am a military person, so I have seen somebody is there coming, I will have patience that let me sure that what is that. Okay, suppose I am a workers in the mines, I am digging and all, an engineer suppose, and then I know this thing that things could be there, coal could be there, I am digging thing, I should have patience because sometime efforts should be made. Likewise, as a student, suppose I am making efforts for success in exam, so one attempt I couldn't clear, second attempt I couldn't clear, so I should have patience. This, okay, that makes sense. So in that sense, that in real life also sometimes patience is that is why Tulsidas has said this, that in tough time your patience will be tested. धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काले परखों चारी. सो धीरज इज पेशेंस. ओके, तो हमने इसको एब्जॉर्ब किया अपने पर्सनालिटी में. सपोज आई हैव, ओके, बट व्हाट इज मैन इन योर ओन वे, मतलब मुझे कितना पेशेंस रखना है ये मैं डिसाइड करूँगा. जैसे कि मुझे एज ए स्टूडेंट मेरे चैलेंजेस हैं लाइफ के, तो मैं कितना पेशेंस रख सकता हूँ इसमें, है ना. जैसे मेरे फैमिली बैकग्राउंड्स में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि आप पढ़ो, तो मैं कितना पेशेंस रख सकता हूँ इस चीज़ों को करने के लिए. जब एक इस लेवल के बाद हमें एस्पिरेशंस भी है कि मैं आईएएस बन जाऊँ या बड़ा चीज़ कर लूँ, लेकिन हमारी फैमिली सफ़र कर रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे पेशेंस रखने का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा वेट करने का कोई मतलब नहीं है. आई विल गो इन माई ओन वे. दिस इज़ द मीनिंग फॉर दैट. एंड सेकेंड विट, डोंट बी अदर्स. व्हाट डज इट मीन दैट, कि पेशेंस एज इट इज जो वो रखते हैं वैसा ही मैं कर लूँ तभी मैं वैसा अच्छा होऊंगा, वो ज़रूरी नहीं है. वो तो एक ना सिंपल कॉपीइंग होता है. एनालॉजी हो सकता है कि वो जैसा उन्होंने उस फील्ड में किया है मैं अपने फील्ड में करूँगा, लेकिन अपने तरीके से करूँगा, है ना, और अपने अपने स्टाइल में करूँगा. मैं उसके जैसा थोड़ी बन जाऊँगा. जैसे suppose I teach in my own way, I make flow chart, I focus on the concepts and all this thing. Many teachers are good communicator, they are very fluent. Okay, suppose I get inspired by that thing, that I should also be like that. So okay, I have taken that pace of communication that I should also have, but in my own way, because suppose I am teaching something that is behavioral by nature, that is something related to virtue, so I cannot be like objective kind of questions that this like that. It cannot be. It is a very interpretive, it is very subjective. Subjectivity is the spirit of this answer. आप जो आंसर कर रहे हैं ना, इसका ऑब्जेक्टिव आंसर है ही नहीं कुछ. इस पूरे आंसर में सबसे बड़ी चीज़ है वो सब्जेक्टिव. मुझे क्या लगता है मैं ये बता रहा हूँ, और इससे इन्फर किया जा सकता है कि अब एग्जामिनर क्या इन्फर करेगा. इससे एग्जामिनर ये इन्फर करेगा कि हमारे आंसर्स में वो क्या देखते हैं उस चीज़ को, कि किस तरह से विवेकानंद की चीज़ों को मैंने सही से इंटरप्रेट किया है और अपने एग्जाम्पल से उसको सब्सटेंशिएट किया है. तो जैसे एज ए टीचर फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे पेशेंस सीखना हो, कि मुझे परफॉर्मेंस किसी कॉन्सेप्ट को बताना है, अच्छे से बता सकते हैं. I will try again and again, so okay, so that is a good quality. Patience रखना है कि कभी कभी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस नहीं आता उतना, then I will try to make it. I will try to make different type of efforts, having patience. Okay, but suppose if I'm making all the efforts and then student is not improving, I must test the student capability in the field. Getting? तो मेरे लिए तो ये मायने है कि मतलब पेशेंस एक लेवल के बाद वो पेशेंस नहीं मूर्खता है, पेशेंस नहीं कायरता है. मैंने अपने समय में लिखा कि एक ज़रूरत से ज़्यादा बहुत पेशेंस रखना वो कायरता हो जाता है, कॉर्डनेस है, एक बेवकूफ़ी भी है ना, कि सब पेशेंस रखो, हैव पेशेंस, सब कुछ सही हो जाए. कैसे सही हो जाए, एफर्ट्स भी लगाना पड़ता है. एंड डोंट बी अदर्स. मैं कॉपी कैट नहीं हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ.
मैं आपसे अच्छी चीज़ें सीख रहा हूँ और अपने तरीके से, जैसे कि मैं इंडिया हूँ, अगर मान लीजिए इंडिया के लेवल पे मैं देख रहा हूँ, तो डेमोक्रेसी दूसरे कंट्री में भी है, इक्वालिटी दूसरे कंट्री में भी है, तो हमने लिया, आई हैव एडॉप्टेड दिस गुड थिंग्स, अलग अलग कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशंस में ले लिया, ठीक है। लेकिन हम डेवलपमेंट भी सोशल जस्टिस लेके आए कि हमारा ऐसा रहेगा, हम सबको ऐसे नहीं रखेंगे, सबको बराबर करने की जगह सोशल जस्टिस को लाए। तो दिस इज आई हैव एब्जॉर्ब इक्वालिटी, है ना, फ्रांस से लिया, सब कुछ से लिया, अमेरिका से जस्टिस का सिद्धिका, सब कुछ किया है, लेकिन हमने उसको अपने कंटेक्स्ट में सीखा है। तो ये चीज़ मैंने देश के लेवल पे बोला, लेकिन पर्सनल लेवल पे मैं जो कह रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। मेरे लिए मायने रखता है कि आप पेशेंस तो रखेंगे, लेकिन तो यहाँ पे आंसर कट मार्किंग कैसे होगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो आपने इसको क्या कहा कि लर्न व्हाट इज़ गुड फ्रॉम अदर्स, तो आपने एक चीज़ किया, फिर दूसरे की उसको ब्रिंग इन इट का मतलब बताया कि क्या होता है आपके लिए, और एब्जॉर्ब एंड डोंट बी अदर्स, मतलब दूसरे के जैसा किया, मतलब डोंट कॉम्प्रोमाइज विद यूनिकनेस, है ना। ये मान रहा है कि हर व्यक्ति अलग है, विवेकानंद का कहना ये था। तो आप अपने एग्जिस्टेंस के आधार पर, अपने जो फ्रेमवर्क है जीवन का, उसमें आप उसको ढालिए उस गुण को, दूसरे के जैसा, जैसे होता है ना कि जैसे मॉडल है तो हम बिल्कुल उसके जैसा हेयर कट और शर्ट और ड्रेसिंग सेंस सब कर ले, वो चल सकता है, ठीक है। लेकिन उसके जो थॉट, उसकी जो फिलॉसफी है, उसमें अच्छी चीज़ें मैंने ले लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ कॉपी हम करें उसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। तो हमने जैसे जो लिया है वो हमने कस्टमाइजेशन, ये आप समझ रहे हो ना, कस्टमाइजेशंस करेंगे हम उस चीज़ का, किसका, गुड चीज़ों का, जो हमने गुड चीज़ें लिया है ना किसी से और से, उसका कस्टमाइजेशन करेंगे। एंड आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ माई यूनिकनेस। यही है कि मैं जैसे मैं एज आई एम अ गुड टीचर, तो मान लीजिए कि इन माई ओन वे, अदर पर्सन कुड बी गुड इन देयर ओन वे, तो देयर टीचिंग स्टाइल थोड़ा अलग होगा, मेरा अलग होगा। तो हमने अच्छा लिया है किसी से, तो फिर भी मैं अपने को उनके जैसा नहीं करूँगी, या उनको हमारे जैसे करने की क्या ज़रूरत है। सो दिस इज़ द थिंग्स दैट कस्टमाइजेशन करेंगे अपने लिए, मतलब ये कंटेंट जो भी लिया हमने अपने कंटेक्स्ट में उसको हम फिट करेंगे अपनी चीज़ें, एंड देन आई विल अडॉप्ट एज ए इन माई यूनिक वे, मतलब यूनिकनेस, मतलब जैसे मैं हूँ। देखिए एक कॉमन चीज़ें होती है, एक अल्पोर्ट बोला है साइकोलॉजी में ट्रेड की, कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं और कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं। तो यूनिकनेस हर इंडिविजुअल की पहचान है ना। तो वो कार्डिनल चीज़ें होती बहुत ज़्यादा, है ना, उसको क्यों चेंज करना है मुझे, हम क्यों जैसे एक हार्वर्ड के प्रोफेसर है, बहुत अच्छे हैं, तो उनका कुछ चीज़ें लेंगे हम ना, जैसे उनका कम्युनिकेशन स्टाइल है, क्लैरिटी है, उनका जो एन एग्जाम्पल देने का तरीका है, आई कैन टेक, बट वाई आई विल बिकम लाइक हिम, आई विल बी लाइक मी, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक होता है ना कि जैसे एनालॉगस चीज़ें वहाँ से ले लिया है, यहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन अपने तरीके से यूज़ करेंगे। डेवलपमेंट मॉडल में भी वही होता है कंट्री के लेवल पे, कि आपने किसी के मॉडल को उठाया, जैसे कहते हैं ना चाइना मॉडल, यूएस मॉडल, उसको लेने के बाद हम अपने तरीके से यूज़ करते हैं और अपने तरीके से यूज़ करते हैं और अपने जैसे के लिए यूज़ करते हैं। तो डोंट बी अदर्स को भी मैं ये कह रहा हूँ कि हम दूसरे से अच्छी चीज़ों को ले लेंगे, इतना नहीं हो जाए कि हम उसके जैसा बह जाए, हमारी पहचान, हमारी जो यूनिकनेस है वही ख़त्म हो जाए। तो मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। तो ये चीज़ को हमने, लेकिन इसका मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, मेरे लिए मतलब क्या है वो बता रहा हूँ। व्हाट डज इट मीन टू मी, इट इज़ नॉट दैट व्हाट इज़ सिमेंटिक मीनिंग, what is my interpretive meaning in my own context, that I am telling you। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब कॉमन जो चीज़ें हैं, एरर जो है इसमें, वो क्या करते हैं लोग, जो समझो आप इसमें, एक तो ये करेंगे इसका जनरल मीनिंग समझाना, विवेकानंद के लिए क्या मतलब था ये समझाना शुरू कर देते। क्वेश्चन तो था ही नहीं, क्वेश्चन तो क्लियरली ये कह रहा है कि व्हाट डज इट मीन टू यू इन द, व्हाट इट कन्वे टू यू इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में मैं जो भी कर रहा हूँ, या कंट्री के लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, उसमें मैं बता रहा हूँ कि मेरे लिए तो ये मायने रखता है कि अच्छाई देश का हो वहाँ से लेना चाहिए, अच्छे लीडर का हो वहाँ से लेना चाहिए, लेकिन हम उसको एज कॉपी कैट नहीं बनेंगे, हम उसको कस्टमाइज़ करेंगे और अपनी पहचान और यूनिकनेस को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यही इसका मेरा मतलब है।
तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से। और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सब्जेक्टिविटी से डरिए मत। ये जो एथिक्स का पेपर है ना, मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर इसमें तो बहुत ज़्यादा अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर आएंगे। बोले बिल्कुल आएंगे। तो क्या बोलेंगे, इसके एथिक्स के पेपर इंटरप्रेटिव ही होते, तभी तो पता चलेगा कि आप क्या रीजनिंग कर रहे हो, क्या बता रहे हो। तो इससे आपके माइंडसेट का पता चलता है, एथिकल बेंट का माइंड पता चलता है। अच्छी अच्छी चीज़ें लिखने का क्या मतलब है, जो आप बताना चाहते हो क्लैरिटी से आप बताओ, है ना। तो अगर आप मुझे समझ गए होंगे कि मैं क्या, इसी तरीके से मैंने ना पूरा जो कोटेशन वाली एरियाज है और भी जो डिफ़िकल्ट वाला पार्ट है उसका एक सीरीज़ बनाया है। अगर आप उस सभी को देखना चाहते हैं तो उसका एक छोटा सा कोर्स बना हुआ है, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद मिलेगा उसका लिंक, हमारे एडमिन सेक्शन वाले ही करते हैं। तो उसको आप यूज़ करके पूरा देख सकते हैं अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो। नहीं पसंद आ रहा तो जिनको पसंद आ रहा है उनको देखिए, लेकिन मैं इसका मतलब यही निकालता हूँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और इसी तरीके के कोटेशन वाले आंसर की। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।